नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। आज हमारे साथ हैं पूजा जी, जो कि नोकिया में सॉल्यूशन स्पेशलिस्ट हैं। आज हम पूजा जी से उनकी सक्सेस स्टोरी जानेंगे। पूजा जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू तो वेरी मच। तो सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को अपना थोड़ा सा इंट्रो दे दें। ओके, सो मेरा नाम पूजा है। मेरा होम टाउन महेंद्रगढ़ हरियाणा है एंड मेरी स्कूलिंग महेंद्रगढ़ हरियाणा से ही हुई है 10th क्लास तक की। एंड उसके बाद मैंने 11th क्लास से बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ना स्टार्ट किया था एंड 11th एंड 12th मैंने वहीं से किया। देन आफ्टर दैट मैंने वहीं से बीटेक किया फ्रॉम कंप्यूटर साइंस ब्रांच एंड बनस्थली से ही मेरा प्लेसमेंट हुआ था एनईसी टेक्नोलॉजीज में। एंड उसके बाद मैंने एनईसी टेक्नोलॉजीज में काम किया फॉर 2 years एंड देन आई स्विच्ड माय जॉब इन ग्लोबल लॉजिक फॉर सम 2.5 years एंड वहां से मैंने स्विच करके नोकिया ज्वाइन की थी। एंड आफ्टर दैट आई एम एसोसिएटेड विद द कंपनी नोकिया इटसेल्फ। एंड मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा 2 भाई हैं एंड दिस इज ऑल अबाउट माई सेल्फ। ओके, नाइस। हमारी ऑडियंस को हम अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे थोड़ा सा, मतलब आपने नोकिया कैसे ज्वाइन किया। ओके, सो एक्चुअली जर्नी इन द सेंस कि जब मैंने जब मैं बीटेक 3rd year में थी तभी से हम लोगों को थोड़ा प्लेसमेंट एंड ऑल का रहता था कि प्लेसमेंट हो जाए बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट गोल राइट, to get placed and you are doing a BTech, then you would want to go and work for an IT company. So that was what we also thought of at that time. And फिर उसके बाद हमारा इंटर्नशिप स्टार्ट हुआ था 4th year में एंड मैंने अपना इंटर्नशिप किया था MRSEC से, जो कि एक PSU है। तो वहां पे जब हम थे, इट इज इन नागपुर। ओके, सो आई हैड डन माय इंटर्नशिप फ्रॉम नागपुर। सो जब हम नागपुर में थे तभी से प्लेसमेंट के लिए कंपनी आनी स्टार्ट हो गई थी एंड कंपनीज आनी स्टार्ट हुई तो हम नागपुर में थे एंड वी गॉट वेरी वेरी टेंस्ड, actually excited and tensed because what if we don't get placed? So that tension was there and yeah, but excitement was also there in the mind that what if we get placed, then life will become so much different and we will be earning money, we will be paying for our things and all of those things were there in the mind. So हमने तभी फिर अपना रेज्यूमे एंड ऑल क्रिएट करना स्टार्ट किया। रेज्यूमे क्रिएट करने के बाद हमने टेक्निकल इंटरव्यूज के लिए स्टडी करना स्टार्ट किया, एप्टीट्यूड्स के लिए स्टडी करना स्टार्ट किया एंड देन हम नागपुर से बहुत सारे मतलब लाइक वी वर 8 फ्रेंड्स who had done this internship together, जो कि हम सेम उससे थे, बीटेक से, सेम बैच से। So we all came from Nagpur to Banastil University, which is in Tong, Rajasthan. Okay, then we all met and then after that on the day of interview, I did not get selected in the interview. I got rejected and I was not happy at all. I was very very I was very sad actually, not yeah, I was very sad and but yeah, friends tried to cheer me up that this is the first company, don't worry about it, abhi aur bhi companies aayingi and you will surely get placed, because I was very good in my academics. So everybody had this kind of hope in me that I would definitely get placed in the second company, because it's okay if I don't get selected in the first company, it happens with people. And then I was not inside my mind I was a little bit relaxed, but then also getting rejected in TCS kind of was very sad for me. And we some of our friends got placed in that company who came with me from Nagpur. So then I was like, I had to face my director sir also to tell him that I did not get placed. So that was also something that I was required and I had to face. So ऐसे करके okay, then we went to Nagpur back and मतलब एक हम में से भी जो भी let's say 8 students came and out of those 8 students
4 or 5 were not placed. So okay, then we went to our training institute the next day after coming back from Tong, Rajasthan, and then yeah, like it was not a good thing to face our director sir and telling him that okay sir, I did not get placed. Like for every one of us who did not get placed, it was tough for every one of us. Then okay, then fine, things went by for some days, and then again we got a news for another company, and it was HCL, I guess. And then we again came back from Nagpur to Tong, Rajasthan for the placements. अभी मेरा फिर से नहीं हुआ जब मैं आई HCL के लिए, then मेरा फिर से नहीं हुआ, and I was more sad this time because this was the second company in which I did not get placed. तो मुझे फिर से बहुत दुख हुआ, and then again the same thing happened. We went back to some of the students that came with us, like those 4 or 5 who were remaining. So all of us came again, and this cycle happened once again, that I had to face my director sir and tell him that okay, this time also I did not get placed. And ऐसे ही चलता गया. नागपुर से हम आते गए, हमारा नहीं हुआ. एरिक्सन आई, एरिक्सन में आई डिड नॉट गेट. तो मेरे लाइक 1-2 इंटरव्यू क्लियर हो जाते थे, लास्ट में रह जाती थी, या स्टार्टिंग वाले में ही रह गई, ऐसे रहता था. एंड फाइनली मेरे नागपुर ट्रेनिंग डेज में मेरा नहीं हुआ. 4-5 कंपनीज के लिए हम आए. इट वाज ऑल itself a very big pain, to come from Nagpur to Tong, Rajasthan. And it requires certain amount of financials as well, like you have to spend certain kind of money also, to come from Nagpur to Tong, Rajasthan. But and it was disheartening as well to come from Nagpur to this Banasli University. But then yeah, I was sad. I was not happy. I was sad. I was not happy that I'm not getting placed, and I am the topper of my class. Not the topper, but yeah, I came, like I was among top 5 students. So I was more sad that I did not get placed in all the companies which is coming. Then 8th semester started, our last and final semester started, and that was the only hope. Some not the big names had already came. So now, not because I just wanted to get placed. Yeah, definitely I wanted to work for a big brand, but that's also fine that if I get placed in any company, in any known company, in any multinational, so that was fine with me. Then after like when we came in 8th semester, we started our 8th semester, and then also some small companies started coming up. Then this company NEC HCL came. And yeah, the main thing which worked for me for NEC HCL is everything was pure technical in that company. Everything was pure, and I was good in technical. I was very, very good in technical. So they conducted a written round. उन्होंने एक written round लिया, तो उन्होंने declare किया जो लोग select हो गए थे written round में, and I was one of them who got selected in the written round. So but then they did not continue with the further rounds. उन्होंने वहीं पे बोला कि अब further rounds नोएडा में होंगे, हमारी कंपनी में हम बुलाएंगे. ऐसी कोई गारंटी नहीं होती, they are actually going to call us. But yeah, that's fine. मतलब like okay, written round हो गया है. Hope is a very big thing in any person's life. So there was hope in me कि अभी इस बार मेरा शायद हो जाएगा. ऐसा hope था बस. तो हर एक टाइम होता है वो hope. मतलब before appearing for any company, there is always this hope. तो फिर वो hope थी, and फिर कुछ दिन बाद उनका आया call नोएडा आने के लिए. हम नोएडा गए कुछ बच्चे क्लास के, and this time I got placed. Yeah, this time I got placed, and I was very happy. फिर उसके बाद तो it was all chill days. After this placement, I was very chill, and उसके बाद तो फिर बाद में मतलब we finished our BTech, and BTech finish करने के बाद हम अपने घर आ गए. and मेरी ज्वाइनिंग भी बहुत जल्दी थी, मेरी जुलाई में ही ज्वाइनिंग थी, तो मैंने जुलाई में ज्वाइन कर लिया था कंपनी को. फिर उसके बाद मैंने वहां 2 साल काम किया. It was very learning phase for me in terms of personal as well as professional life, because we were living in a girls university I personally had lived in a girls university for 6 years. So and that too inside those walls only,
I had never lived in a city, and living in a city itself was a very big task, and that too in a city like Noida itself is a very, very big task. Living in Noida is a very big task. I had to, look any PG or rented apartment for me myself. I had to make new friends because मेरे कोई भी जो मेरे सर्कल के friends थे उनमें से कोई किसी का भी नोएडा में नहीं हुआ था. तो I was alone in the whole city. So I had to make new friends, and office में भी I had never, obviously किसी ने भी नहीं किया होता ऐसे work environment में काम जहाँ पे बहुत सारे सीनियर लोग भी होंगे, जूनियर भी होंगे, एंड लाइक इस तरह का एनवायरनमेंट. बिकॉज हमने तो केवल वैसी पढ़ाई की होती है जिसमें सारे हमारे साथ के होते हैं और बस हमारे टीचर्स होते हैं, बट वैसा कोई एनवायरनमेंट नहीं होता जहाँ पे हम साथ में काम करते हैं. बहुत एक्सपीरियंस्ड, मतलब लाइक कोई प्रोजेक्ट मैनेजर, कोई प्रोजेक्ट लीड, कोई टीम लीड, कोई मॉड्यूल लीड, ऐसे लोगों के साथ काम करना. It was a all new experience for me. So I was learning all those things in the NEC technologies, and technology भी बिल्कुल नई थी जो मुझे assign हुआ था. I had to work on Linux shell scripting, Perl scripting. ये मैंने कभी बीटेक में नहीं पढ़ा था. बीटेक में हमारे जावा पढ़ाया गया था, सी पढ़ाया गया था, C++ पढ़ाया गया था, एवरीथिंग, बट नॉट दीज थिंग्स. एंटरप्राइज लेवल के जो टेक्नोलॉजीज थे वो नहीं पढ़ाए गए थे उस टाइम पे. जो टेक्नोलॉजीज बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट में यूज हो रहे थे. एंटरप्राइज लेवल पे तो खैर जावा एंड ऑल की है ही, बट हाँ जो टेक्नोलॉजीज मुझे करने थे वो नहीं पढ़ाए गए थे. तो लाइक उनको सीखना भी एक चैलेंज था. एंड you cannot do many mistakes in a company, in a work environment. तो वो सब चीज सीखना है. It was a very learning phase for me. Then after 2 years मैंने वहां से स्विच कर लिया था एक दूसरी कंपनी ग्लोबल लॉजिक में. वहां पे मैंने अब एक नई टेक्नोलॉजी पे काम करना स्टार्ट किया, NoSQL डेटाबेस, मार्क लॉजिक. फिर उसके बाद वहां पे करने के बाद मैंने फिर से वहां पे काम किया. इस बार थोड़ा सा मेरा सेम था पिछली वाली कंपनी के जैसे, थोड़ा शेल स्क्रिप्टिंग, पर्ल स्क्रिप्टिंग ये सब का यूज हो रहा था, बट एक नया डेटाबेस यूज करना था, उसको सीखना था. तो फिर उसके बाद 2-2.5 साल बाद मैंने वहां से फिर से चेंज लिया एंड मैं नोकिया में आई. एंड नोकिया में आके मैंने अब फिर से नई टेक्नोलॉजीज आई. अब की बार मेरे को एकदम टेलीकॉम डोमेन में मैं आ गई थी. मतलब मेरा फर्स्ट टाइम था स्टोरेज डोमेन, देन मेरा था NoSQL डेटाबेस डोमेन. नाउ आई वाज इन टेलीकॉम डोमेन. यहाँ पे मुझे पूरा का पूरा पॉलिसी, चार्जिंग ये सब सीखना था. And now I needed to work in Java, not in any other languages that I had already worked in my entire career during my tenure of around 4.5 years. So मैंने नोकिया में ज्वाइन किया. नोकिया में ज्वाइन करने के बाद अभी मैं नोकिया में ही हूँ एंड वहीं पे काम कर रही हूँ आफ्टर दिस. So this is all about my journey. Okay, nice. तो आपने खुद को हर रिजेक्शन के बाद कैसे मोटिवेटेड रखा? I got your question. मैंने कैसे मोटिवेटेड रखा? फ्रैंकली मैं मोटिवेटेड तो बहुत ज्यादा नहीं थी. मतलब काइंड ऑफ मैं सैड थी. I will not lie that I was sad. Definitely I was sad. But प्लेस्ड होना था. फैमिली में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी एंड सब फ्रेंड्स प्लेस्ड हो रहे थे, मुझे भी प्लेस्ड होना था. तो I was just continuing with the process in the sense कोई भी कंपनी आ रही थी, I was sitting in each and all company. I was facing all my fears. तो बस मैं फेस कर रही थी सारी सिचुएशन एंड आई वाज कंटिन्यूइंग इन द प्रोसेस. तो आई थिंक वही मेरा मोटिवेशन था कि मुझे बस हर एक कंपनी में बैठना है, हर एक कंपनी में अपना 100% देना है, तैयारी करते रहना है, अपने आप को टेक्नोलॉजी वाइज अपडेटेड रखना है, अपने ऊपर काम करना है ताकि नेक्स्ट कंपनी में सेम रिपीट ना कर सकूं, अपनी सेम मिस्टेक रिपीट ना करूं. ये सब चीजें थी जिससे मैंने मतलब इतना सारा सफर तय किया NEC HCL तक का. एंड मैं उसमें भी बैठी विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड कि मेरा शायद इस बार हो जाएगा. तो मोस्टली मोटिवेशन यही था कि प्लेस्ड होना है एट द एंड एंड बैठना ही है हर एक कंपनी में और अपना 100% देना ही देना है, चाहे से अंदर से कैसा भी फील हो. दैट वाज माय होल पॉइंट. नाइस. अगर आपको पास्ट में जाने का मौका दिया जाता, आप अलग तरीके से क्या करते? ओके, सो अगर मुझे पास्ट में जाने दिया जाए उस टाइम ड्यूरेशन पे जहाँ पे प्लेसमेंट स्टार्टेड थी, सबसे पहला तो मैं
अपने आप को ये बोलती लाइफ, दिस इज लाइफ, एंड लाइफ अभी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी. देयर इज नो प्लेस टू फील दिस मच सैडनेस इन लाइफ, यू नो. बहुत सारे छोटे छोटे मोमेंट्स के लिए खुश होते रहना चाहिए. एट नाउ आई जस्ट फील कि जॉब इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज नॉट लाइफ, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट अ लाइफ, इट्स नॉट लाइफ. सो मैं अपने आप को समझा, अपने आप को बोलती कि आज नहीं तो कल डूड चिल, तेरा हो ही जाएगा. एंड नहीं भी होगा तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, अदर ऑप्शंस. ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है कि इतना सैड नहीं होना. फर्स्ट थिंग, आई वुड हैव नॉट बीन कंसिडरिंग like you know being in a job the most important thing in my life. It is a part of my life, not the whole thing. At that point of time I thought that this is most important fee, this is the most important thing, that is the most important thing. Okay, but just keep trying, and agar nahi bhi hota hai to just then enjoy life as well. Life is very very important, very very important. And in life बहुत सारी चीजें आती हैं जाती हैं. We always grow from our mistakes, our failures. मैं अपने आप को बोलती कि ये मतलब every failure is another ladder to the success. तो ठीक है, ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ अगर तेरा रिजेक्शन हो गया. एंड मैं अपने आप को ये भी समझाती कि what मतलब लाइक मे बी मैंने ये भी सोचा था कि यार मैं मतलब ऐसा सोचती थी कि यार मैं तो मतलब टॉपर, आई एम अमंग टॉप 5 और मेरा नहीं हो रहा. तो मैं अपने आप को बोलती तो क्या हो गया अगर तुम हो तो कोई आसमान थोड़ी टूट गया, मतलब हो तो हो. सो इट्स लाइक मर्फीज लॉ, एनीथिंग दैट कैन हैपन विल हैपन. तो ठीक है किसी और के साथ नहीं हुआ, बट मर्फीज लॉज इज अप्लाइंग टू यू, दैट्स फाइन. मोस्टली यही है. एंड मैं अपने आप को यही जरूर बोलती पास्ट में जाती तो कि कॉन्फिडेंस इज द की. कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा जरूरी चीज है. हैविंग कॉन्फिडेंस इन योर, यू शुड हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ. एंड उसके अलावा जो मैं बोलती वो ये बोलती कि डू नॉट एसोसिएट योर वैल्यू विद समथिंग. like if I am associating my value with a job, with a maybe with anything else, I should never associate my value with anything. मतलब ठीक है, ट्राई करो, मेहनत करो, ड्रीम है अचीव करो, एनीथिंग, बट कभी भी these things should not put us down. हमें बस ट्राई करते रहना है. लाइफ इज अ जर्नी और हमें उस जर्नी को जीते जाना है. और हमें अपनी फेलियर से भी सीखना है, हमें अपनी सक्सेसेस से भी सीखना है, सबसे सीखना है. एंड बस मेहनत करते रहना है और अपनी जो भी पास्ट फेलियर्स हैं उनको देखना है, उनको एनालाइज करना है हर चीज की क्या पॉइंट रह गया अब की बार, क्या मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, यही सब करना है और एंजॉय करना है. बहुत अच्छे. आप क्या सोचती हैं, क्या हमें एक कंपनी में प्लेसमेंट मिलने के बाद प्रयास करना बंद कर देना चाहिए या फिर और अच्छे बेहतर अवसर के लिए जाना चाहिए? करेक्ट. मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों का एटीट्यूड यही था उस टाइम पे, बिकॉज हमें शायद नॉलेज की कमी थी कि हम ये सोचते थे कि एक कंपनी में प्लेसमेंट हो गया तो बस लाइफ चिल हो जाएगी, एकदम सेट है लाइफ, मतलब फिर तो बस ऐसा हो जाएगा कि हमें कुछ करना ही नहीं है लाइफ में, मतलब लाइक बहुत ही ज्यादा कुछ अमेजिंग हो जाएगा, ऐसा था हमारे माइंड में. तो सबके साथ आई थिंक ऑल माय बैचमेट्स वर सेम इन दिस सेंस. तो अभी क्या था कि हम लोगों की जैसे सबकी ही कॉलेज की साइड से एक ही प्लेसमेंट अलाउड थी कि एक ही प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं और फिर उसके बाद नहीं बैठ सकते. हम सारे एक ही प्लेसमेंट में बैठे, हमारा हो गया तो बस हमने छोड़ दिया, मतलब एक प्लेसमेंट हो गई, दैट डन, अपन तो सेट है. बट दैट इज नॉट हाउ आवर एटीट्यूड शुड हैव बीन लाइक. हमें और मेहनत करनी चाहिए थी, इन द सेंस हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को देखना चाहिए था. बड़ी बड़ी कंपनीज के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स कैसे होते हैं, एल्गोस डीएस, उन पे अपना और स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना चाहिए था. एंड हमें अपनी तरफ से अप्लाई करना चाहिए था कंपनीज में. हमने वही यहाँ पे मिस्टेक कर दी, हमने अपनी तरफ से कहीं अप्लाई नहीं किया, हमने बस कॉलेज पे डिपेंड किया. कॉलेज ने जिस कंपनी को बुलाया बस हम उस पर ही डिपेंडेंट रहे, हम अपनी तरफ से अप्लाई ही नहीं करे, which is not the thing that we should had done.
हमें और कंपनीज में, मल्टीपल कंपनीज में अप्लाई करना चाहिए था, मल्टीपल और इंटरव्यूज देने चाहिए थे, एंड वी कुड हैव क्रैक्ड समथिंग मोर बेटर एट दैट टाइम। एंड वो क्योंकि हम ऑलरेडी स्टूडेंट थे, और स्टूडेंट सबसे अच्छा फेज होता है लर्निंग का, मतलब तब हम सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं लर्न करने के लिए, तो हम बहुत ज्यादा लर्न कर सकते थे और बहुत बहुत ज्यादा और चीजें कर सकते थे। सो मेरा तो यही है कि मुझे नहीं लगता वी शुड हैव स्टॉप्ड राइट एट देयर, और चिल करना स्टार्ट कर देना चाहिए था बहुत ज्यादा। हमें डेफिनेटली ट्राई करता रहना चाहिए था किसी और अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि अगर हमारी स्टार्टिंग जॉब ही बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, मतलब लाइक एक बेटर अपॉर्चुनिटी होती है, तो बहुत सही हो जाती है लाइफ आगे चल के। आई हैव सीन पीपल आफ्टर आफ्टर entering into this corporate industry, I had seen some people who had done this and they had bagged some really good companies. So मुझे ऐसा लगता है कि हमें ट्राई करना चाहिए ज्यादा। आपने अपने जीवन में कुछ सबक क्या सीखा है जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहोगे? ओके, तो यार देखो, फर्स्ट थिंग जो मैंने सीखी है वो यही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि ये लाइफ है, इस लाइफ में किसी भी चीज को ना बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, कि एक एस्पेक्ट को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। लाइफ बहुत ही बड़ा गिफ्ट है, बहुत ही ज्यादा बड़ा गिफ्ट है लिटरली, एंड उस गिफ्ट को हमें वैल्यू करना चाहिए। एंड हमें इस पैंडेमिक ने तो सारी लर्निंग दे दी है वैसे, कि लाइफ कितना बड़ा गिफ्ट है। इवन नाउ वी आर लर्निंग कि एयर भी कितना बड़ा बड़ा गिफ्ट है। तो इन गिफ्ट्स को हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, इनको मतलब इनका वैल्यू उतना ही होना चाहिए। फर्स्ट लर्निंग। सेकंड लर्निंग जो मेरी रही है वो ये है कि मतलब इन रिलेशन विद दिस इंटरव्यू प्रोसेस एंड एवरीथिंग, कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे हम तैयारी कर सकते हैं इंटरव्यूज की। हमें डेफिनेटली उन प्लेटफॉर्म्स को यूज करना चाहिए। जैसे एक बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आई विल नेम सम फ्यू प्लेटफॉर्म्स, जैसे गीक्स फॉर गीक्स एक प्लेटफॉर्म है, हैकर रैंक एक प्लेटफॉर्म है, हैकरअर्थ एक प्लेटफॉर्म है, कोडशेफ एक प्लेटफॉर्म है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जिसपे हम ना अपनी एल्गोरिथम और अपनी डीएस एल्गो इन सब चीजों की तैयारी कर सकते हैं। एंड वी कैन बिकम we can start giving interviews for companies like Google, Microsoft, Facebook, Apple, in all these companies, and these kind of preparation really helps to crack these kind of interviews. तो ये है सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट इज कि हमें मतलब अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल, अपनी naukri.com की प्रोफाइल हमेशा अपडेटेड रखनी चाहिए। एंड लिंक्डइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम टू कनेक्ट प्रोफेशनली विद एवरीवन। तो हमें लिंक्डइन का बहुत ज्यादा यूसेज करना चाहिए, एंड हमें अपना कनेक्शन स्ट्रांग बनाना चाहिए, अपना प्रोफेशनल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग बनाना चाहिए। एंड लिंक्डइन पे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलती है। इफ यू आर नॉट हैप्पी इन योर करंट जॉब, or if you want that to grow in some areas, let's say financial area, or whatever your aspiration is, then we should realize the true power of LinkedIn, and we should always keep ourselves updated. एक ये है लर्निंग। और मोस्टली एक ये है कि always be humble, always be kind, never let the success or anything go to your head. इट्स नॉट ए गुड थिंग। हम मतलब कुछ ऐसा फोड़ नहीं रहे हैं, मतलब लाइक हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। इट इज जस्ट अ जॉब, एवरीबॉडी इज डूइंग सम जॉब, ईच एंड एवरीवन इज सेम। तो ऐसा है। एंड always make your parents proud on you, and always try to help them as much as you can. Parents, family, friends, these are the most important part of anyone's life, and we should always be connected in all sense with our family and friends. They are the most important part. Everything is secondary. Career, job, everything is secondary, but parents and family and friends are the most important part of a person's life. And professionally, be proactive, I will say to everyone. Be very proactive once you get a job, once you start a job, because being proactive really helps to climb the success ladder.
be very proactive and be very vocal for your ideas. Whatever ideas you can put on the table, you should do it, because हमारे seniors, हमारे सभी को पता होना चाहिए कि हमारा potential कितना है. According to this only, we are going to get the rewards. According to this only, we are going to get senior positions, and इस तरह से ही grow करते हैं हम corporate में. तो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए हमें अपने आइडियाज बहुत ही ओपन एंड बहुत ही अच्छे क्लैरिटी के साथ वी शुड पुट देम ऑन द टेबल. जूनियर्स, सीनियर्स, हर एक की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा. एंड अपनी कंपनी में थोड़ा सा कनेक्शन बनाने का भी ट्राई करना चाहिए, बिकॉज फर्स्टली प्रोफेशनल कनेक्शंस बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक प्रोफेशनल के लिए. एंड it will make your life very easy if you have good friends within your company. And other important part that I have learned is be very, very non-judgmental for anything. Judgment never helps with anything. If you're judging anyone for any of their choices, that's not good. Be completely keep the judgment mind aside. That's not gonna help you in any sense. So that's all the learning that I had taken in some of the learnings. Nice. पूजा जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे प्लेटफॉर्म में आने के लिए, हमारे ऑडियंस के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए. उम्मीद करते हैं जो कि लोग नोकिया में या किसी और कंपनी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस वीडियो से अपने करियर की सक्सेस के लिए बहुत मदद मिलेगी. दोस्तों, कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन की जानकारी प्राप्त होती रही. तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में. तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ. Thank you for having me in this interview. I hope it can help people. My journey can, if it is going to inspire even if one person, then I will be very, very happy.